Moving forward, we now proceed towards the next standalone session of the day, titled Why Prevention is Better Than Cure. In this session, speaker will discuss the kind of steps to be taken to prevent data breaches. And for this session, we have Amit Kumar Dubey, Cybersecurity Evangelist, Tech Mahindra. Please join me in welcoming Mr. Amit up on the stage. Thank you so much, first of all, for having me here to speak in front of such a diligent audience. Friends, I'm a cybercrime investigator, and whatever I have learned in my life, I have learned through criminals. And I truly believe that criminals are innovators. They always teach us something new when I solve a case. Every time we crack a case, we catch these criminals, we learn a new modus operandi, new technical vulnerability, or a human vulnerability, or a process breach. So I'll be sharing some of these interesting things which I have learned through criminals only in these few minutes. We all know that Twitter was acquired few months back, and within 2 weeks of its acquisition, it was hacked. FBI started the investigation. They arrested 3 kids. 17 years old Nima Fazeli from Orlando, 19 years old Graham Ivan Clark from Florida, and a 21 years old guy. Actually, the 17 years old guy hacked the Twitter, and these rest of the 2 guys were selling it on dark web at Twitter Hack as a Service. Now, we can't think, or we can't say that Twitter was not using antivirus system, or they didn't have firewall, routers, gateways, or intrusion prevention system, or intrusion detection systems, or SOC systems, or endpoint protection system, or DLP solutions. You name it and they had it, right? And it was hacked by a 17 years old guy who was not even going to college. How does it happen? And this was not the first time. If you search on Google, top 10 hackers of the world, you will get Kevin Mitnick and 10 guys till Palmer, and you will be surprised that most of these have done their best hack when they were 17, 18 or 19 years of age. उसके बाद वो कुछ बड़ा कर नहीं पाए. Why it is so? ऐसा क्यों होता है? So I'll crack these aspects today. Why education corrupts us, especially in securities. एक slide मैंने खोली यहाँ पे. Google Play Store है जहाँ से हम application install करते हैं. So I'll request my presenter, can you search Facebook on this? सिर्फ Facebook search कीजिए. And I'll show you something interesting. And then we'll Facebook लिखना है सिर्फ. Yes, search it. Now click it on Facebook, and you all can do this on your mobile phone. Facebook पर क्लिक कीजिए और फिर स्क्रॉल करके नीचे आइए. हाँ, इस पर क्लिक कर दीजिए. Then scroll and go down. नीचे आके डिटेल्स करके एक ऑप्शन है, उसको क्लिक कर दीजिए. सी डिटेल. हाँ, बहुत ज़्यादा. सी डिटेल ग्रीन कलर कर दे. इसको क्लिक कर दीजिए. सी डिटेल्स दिख रहा है आपको? बस क्लिक. आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आइए. ये जो मैंने किया अभी आपके सामने, यू कैन स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन. डेटा कलेक्टेड पे आ जाइए. हाँ, बस और नीचे कर लीजिए. थोड़ा सा और स्क्रॉल. बस, दैट्स इट. थैंक यू. ये जो मैंने प्रोसेस फॉलो किया, ये आपको फॉलो करना है फॉर एनी एप्लीकेशन टू चेक व्हाट रॉन्ग इट कुड डू विद योर फोन, व्हाट डेटा इट इज कैप्चरिंग फ्रॉम योर डिवाइस. एंड आई एम रेफरिंग स्पेशली फेसबुक, बिकॉज हम सबके फ़ोन में वो तो है ही. फेसबुक पिछले 15 साल से हमारे फ़ोन से क्या लेता है? जस्ट लुक एट हियर, लोकेशन. सो वी ऑल नो फेसबुक नोज अवर लोकेशन. दैट्स ओके. क्या है लोकेशन? अप्रॉक्सीमेट लोकेशन एंड प्रिसाइज लोकेशन. इट मीन्स GPS, cell ID, IP address, everything. They didn't use word or here. They said and. दोनों चाहिए मुझे. So hungry. Personal information. Name, email address, user ID, address. This is your physical address. When you started a Facebook account, did you give your physical address to Facebook? No, we never gave. Facebook कह रहा मुझे आपका एड्रेस पता और आपका नहीं. 550 करोड़ लोग हैं फेसबुक. सबका पता है. इससे पहले आप यदि अपना घर बदलें, so before that it gets changed on Aadhaar card, यहाँ अपडेट हो जाता है. He's claiming I know each and every address. So it is not GPS location. It is if you are living at 14th floor in a building, yes, we know 14th floor, 17th floor, yes, I know 14th floor, this house number. I know the exact address of this person, that too of 550 crore people. After that, they say phone number, of course. Political or religious belief. Facebook says, I know your political belief and religious belief.
कि आपने लास्ट टाइम किसको वोट दिया प्रॉब्ली, और हाउ हार्ड और सॉफ्ट यू आर अबाउट योर रिलीजन, लिबरल, and your sexual orientation. It is not about being male or female. It's about LGBTQ plus and other information. Other information is an open-ended thing because अभी तक उन पर पेनल्टी उसके लिए नहीं लगी, so it is other information. Financial information. How many times you withdraw cash? दो कैश विड्रॉल के बीच में आप करते क्या हैं, कब किसको पेमेंट किया, परचेज हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर, अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए प्लीज. योर हेल्थ एंड फिटनेस. आप कितना सोफे पे बैठते हैं, कितना वॉक करते हैं, कितना सीढ़ियां चढ़ते हैं, सब उसको पता है. ईमेल, एसएमएस, एमएमएस एंड अदर इन ऐप मैसेजेस. अदर इन ऐप, अरे भाई दूसरे ऐप का क्यों पढ़ रहे हो? डिड यू नो दिस? फेसबुक पे मैसेज लिख रहा हूं तो आप पढ़ते ही चलो. ईमेल भी पढ़ूंगा, एसएमएस भी पढ़ूंगा, एमएमएस भी पढ़ूंगा, एंड अदर इन ऐप मैसेज. अदर कोई भी, उसमें भी कोई मैसेज आ रहा है, आई एम रीडिंग इट, आई हैव इंटरेस्ट इन इट. व्हाई डू यू हैव इंटरेस्ट इन दिस? और फिर आप कहोगे व्हाट्सएप सिक्योर है. अरे फेसबुक का ही है व्हाट्सएप तो उसी का, उसको अदर ऐप भी नहीं बोल सकते, वो तो उन्हीं की है. फोटोज एंड वीडियोज, सो ऑल ओटीपीज, एवरीथिंग इज गोइंग टू फेसबुक, राइट? अभी 2 साल के बाद आपके घर में अचानक से घंटी बजे और कोई आपसे कहे कि भाई साहब ये दवाई खा लीजिए, शाम को हार्ट अटैक आने वाला है आपको, तो आप चौंकना मत, बिकॉज इट इज क्वाइट पॉसिबल बेस्ड ऑन द डेटा दैट दे हैव बीन कैप्चरिंग. नॉट ओनली फेसबुक का सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया, प्लीज डोंट ब्लेम फेसबुक फॉर दिस. अभी गूगल का देखिए, एनी एप्लीकेशन यू नेम इट एंड दे विल बी कलेक्टिंग द सिमिलर काइंड ऑफ डेटा. फोटोज, वीडियोज, वॉइस एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स, म्यूजिक फाइल्स एंड अदर ऑडियो फाइल्स. Many government officers, हम लोग भी अपनी कॉल रिकॉर्ड्स करते हैं. All these calls are going to Facebook. Why should they know our call records or call recordings? इससे सोशल मीडिया पे क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन ना, मैं पढ़ूंगा. Files and docs. If you are exchanging any documents, PPT, presentations, RFPs, quotations, bills, everything is going to Facebook. और थोड़ा नीचे कीजिए सर. Calendar, all your contact list or your app activities, how many apps you have in your phone, what do you do with those apps, what data you generate with those apps, when did you install it, when did you uninstall it, device, other. If you have Facebook in multiple devices, they are reading this data from each and every device. With this code, not only Facebook, any other application, Google इससे ज़्यादा लेता है. और वो तो उसका तो डेटा भी मैं दिखा, मेरा लैपटॉप चूंकि यूज नहीं हुआ, अदरवाइज आई वुड हैव shown you my each and every second of location which anybody of you can see through Google dashboard. Why are they collecting this data? What do they want to achieve out of it? Now you can go to my presentation, please. Do they want to sell you toothpaste, oil or shoes or cars? No. They can anyway sell it to you through your other profiles data. इतना प्रिसाइज क्यों उनको चाहिए कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे, आपकी हेल्थ फिटनेस भी चाहिए, आपका ईच एंड एवरीथिंग विच यू आर डूइंग ऑन फोन दे आर रिकॉर्डिंग इट. व्हाई? बिकॉज दे वांट टू कंट्रोल यू. अब बात सिर्फ आप तक बेचने की नहीं है, अब बात है कैन वी कंट्रोल ह्यूमंस, कैन वी कंट्रोल योर एस्पिरेशंस, कैन वी कंट्रोल योर माइंड, बिकॉज वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा. वी ऑल ह्यूमंस आर प्रोडक्ट ऑफ द डेटा दैट हैज बीन फेड टू अस सिंस आवर बर्थ. बचपन से लेकर आज तक जो डेटा हमें फीड किया गया, हम उस डेटा का प्रोडक्ट. इफ आई वुड हैव बीन बोर्न इंस्टेड ऑफ झांसी in Romania, I would have become a different person altogether, speaking different language, wearing different clothes, eating different food, and defending that person all through my life that I am a proud Romanian. और उसके बाद 50 साल के बाद कोई आके मुझे कान में कहे भाई साहब इंडिया में हुए थे आप, I'm confused, किस चीज पे प्राउड कर रहा था मैं अभी तक? So anything, everything, whatever you have in your life, that is just data, and you are the product of the data. And because all these companies are collecting so much data from you, they can eventually manipulate your sources. आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले हमारे डेटा सोर्सेस लिमिटेड. We were consuming it from books, teachers, parents. टेलीविजन ने करप्ट किया थोड़ा सा. But now 80% of the data that we are consuming is from unauthenticated sources. It is from social media. And it is not verified. It is deliberately generated to manipulate you. And that's the danger. That is the biggest privacy risk today.
Next slide, please. I always like to start my session with this line that I would love to change this world, but they won't give me the source code. So I truly believe that this entire world is a software program, and we all humans are like artificial intelligence plugins. ChatGPT आप में से कितनों ने use किया? How many of you have used it? Okay. So we were told that ChatGPT is actually simulating our mind, right? But actually it is other way around. Our mind is very similar to ChatGPT. We are also the product of the data. Our intellect also gets built through data points. किसी ने 2 किताबें ज़्यादा पढ़ ली, वो ज़्यादा intelligent हो गया. The kind of intelligence that we think intelligence is, intelligence की भी अपनी definition हो सकती. अभी कल I was discussing on a television channel, and ChatGPT is coming up with a new feature or new algorithm that is called Q star. You might be knowing about Q star. It is combination of Q learning and A star search. It will give lots of mathematical calculation power to ChatGPT. It will enable it to solve elementary mathematics problems, which was missing otherwise, because वो pattern पहचानता था, mathematics के बारे में नहीं जानता था, logical thinking नहीं थी. So we are incorporating that logical thinking also to all LLMs, large language models, through Q star algorithm. Our brain is also very similar. We have an art side and we have a math side. तो अभी तक ChatGPT जिसने भी use किया होगा, they would have used it to create documents. They would have used to create stories, poems, images, videos, clone voices, articles, books, blah, blah, blah. All this is artistic in nature. But now it will be enabled for mathematics and will be solving complex mathematical problems. ये जो कुछ लिंक मैंने दी हुई है, इसमें से कोई भी अपने मोबाइल में खोल लीजिए. एक खोलिए privacy.net/analyzer. privacy.net/analyzer. Right side. Once you will open it in your mobile phone, there will be a button called Start Test. Just click on that button, and it will steal some of the information from your phone and will start showing you. कुछ information चुरा लेगा वो बिना आपकी परमिशन के. आपसे कोई परमिशन नहीं ली जाएगी और आपको दिखा देगा. क्या है वो इन्फॉर्मेशन? यदि आप लोग ट्राई करेंगे तो देख पाएंगे. वो इन्फॉर्मेशन होगी आपकी लोकेशन. ऑफ कोर्स एनी लिंक दैट वी क्लिक टेक अवर लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा, IP एड्रेस एंड लोकेशन. उसके बाद उसमें आपको दिखाएगा कि आपका सिम कार्ड कौन सा है. अभी दिखाएगा रिलायंस का है, वोडाफोन का है, जियो, वो जो भी आइडिया वगैरह जो भी है. फिर बताएगा कि आपका डिवाइस कौन सा है. इज इट एंड्रॉयड फोन, आईफोन, मैक सिस्टम, विंडोज सिस्टम, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, आईपैड है, बता दे उसी लिंक. देन इट विल टेल यू अबाउट योर ब्राउजर. किस ब्राउजर में आपने लिंक खोला, उसका वर्जन कौन सा है, आपकी बैटरी स्टेटस क्या है, हाउ मच इज योर बैटरी चार्ज्ड, रेजोल्यूशन क्या है, एंड मेनी अदर डिटेल्स. ये सारी लिंक यही कर रही हैं. ये सैंपल लिंक इसलिए दिए मैंने कि आप टेस्ट कर सकें कि हाउ इजी इज दिस टू कैप्चर दीज डिटेल्स. एनी लिंक कैन डू दिस. ये कोई स्पेशल लिंक नहीं है. एनी लिंक विच यू आर क्लिकिंग every day, they can capture at least these details. And these details are more than enough for me to hack your phone. सिर्फ मैं आपको बैटरी स्टेटस देख के आपको हैक कर सकता हूं. मैं आपको सिनेरियो बताऊंगा कैसे. मुझे सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, दैट्स इट. और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो सिर्फ मुझे और आपको पता, और उसके बाद आप हैक्ड. तो 2.5 महीने पहले रात के 11:30 बजे आई गॉट ए कॉल फ्रॉम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी. और उन्होंने कहा कि अमित जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, उनका ट्विटर हैंडल हैक हो गया. ओके, somebody has changed the profile picture and we are getting lots of Bitcoin related tweets. So within 15 minutes we have close to 500 plus tweets. मैंने देखा, we could recover it within next 10 minutes. But then my job was to find out how was it hacked so that we can avoid in future. So I discussed with the person who was managing his social media handles, and he told me that I logged into all my accounts through laptop. I was also using my WhatsApp on the same laptop. I got a link, I clicked that link, and all my sessions were hijacked. I'm sure many of you know about session hijacking. Session hijacking is a technique through which I can log into your account without knowing your password. I don't need your password. I can still log into your account. So whether it is Amitabh Bachchan's Twitter hack or Honorable Chief Minister of UP, it is mostly session hijacking, which is so easy. And why it is easy, why it doesn't happen with you? Because it requires a specific vulnerability in your browser, which keeps coming.
So if your browser is not updated, if it is not latest, there are enough possibilities that your sessions could be hijacked. And session hijacking is like stealing your session ID. So when you log in first time to any server, you give your login password, and server gives you a session ID, which is a random number, which is stored in your browser. Next time when you access the same site, they don't ask your login password again. They authenticate you through your session ID. They check, oh, there is a session alive. The person has not logged out last time. Correct? Now, if I send you a link, you click it, and I steal your session ID, I put it in my browser and refresh my browser, I'll also be logged into all your accounts instantaneously. And that is called session hijacking, which is easy because your browser is vulnerable and I can get this information. What is the version of your browser? Like this. Last link privacy.net/analyzer. It will tell me the browser version. और उसी समय मैं डिसाइड कर लूंगा क्या अटैक वेक्टर तैयार करना है. थोड़े दिन पहले Z Binges पे I ran a campaign and I invited audience and took their iPhone and Android phone. And I started booking cabs from Film City to airport. There are two popularly known cab booking apps, right? A phone which is iPhone has always given me 20% higher fare as compared to Android. मैंने Android मंगाया, iPhone मंगाया. जब भी iPhone से बुक करूँ कैब तो ज़्यादा फेयर देते. Then I asked for 2 Android phones. एक जो 20% charge है, दूसरा 80% and above charged. The phone which was 20% and less charge was always giving me 15-20% higher fare. तो ये शो हुआ, मैंने कुछ क्लेम नहीं किया. I just showed this and then I got an email by evening. दोनों prominent players से किया, क्या कर रहे हैं आप? Misinformation फैला रहे हैं. You should not do this. This could be coincidence. मैंने कहा ठीक है, कल फिर करेंगे. Next day I again repeated the show. YouTube पे है, आप देख लेना. With new audience, and I again asked iPhone, Android. I'm not claiming anything. I'm just showing that when I book the cab through iPhone, it always give me higher fare at the same time on the same location to the same location. दूसरे दिन शाम को उनकी मेल आ गई, sorry, it was a bug, we will fix it. Please don't repeat the show. But can it be a bug? This can't be a bug. This is a feature. And this is not only with these two companies. I'm not naming deliberately. He's going for Funny for the bot. He's going. Repeat the show because we'll fix it. Please don't repeat the show. They didn't want us to further repeat it because we did it for 2 days. But then these are not the only players those are doing it, right? You would have experienced the same thing with any other e-commerce application. They source lots of your browsing history and the activities that you are doing in your mobile phone, sometimes your voice samples as well, to figure it out what they could offer. Correct? Or how much, what range of the products would be offered to you for the same category. So there are many such things which is happening anyway in our day-to-day life where your minds are already controlled by them. Today, आप गूगल पर जाइए और एक कार सर्च कीजिए. उसी समय दुनिया के किसी कोने में कोई बंदा डिसाइड कर लेगा इसको ये वाली कार बेच देता है, क्योंकि उसने ठेका ले रखा है कार बेचने. And they know all about your purchase pattern, your lifestyle, last car क्या थी आपकी, and what could be your right fitment. And then whatever you search on Google or whatever blogs you will read or YouTube videos or memes you will see, they will take you to a particular product. Comparative analysis देंगे, सब देंगे. Because they are exploiting your intelligence. A very good word. Exploiting your intelligence. Because you are intelligent. दो चीजें आजकल सबसे ज्यादा exploit होती है hackers द्वारा. Curiosity and intelligence. Now, after 2 weeks of research, you will purchase that car and you will say, I did research. I found all these logical reasons. And then concluding it that this is the best fit for me because of my all requirements. And you will defend it for others also. कि यार ये बेस्ट डिसीजन है, मैं तो रिसर्च किया है, वो खरीद लेंगे. उसी समय वो बंदा हंस रहा होगा, कल इसको जूते बेचता हूँ, बहुत स्मार्ट बन रहा है. ये हो रहा है हमारे साथ. If not that extent, at least close to that extent it is happening. Because we are always influenced by the data points. We are the product of the data. एक घटना हुई अभी 3-4 महीने पहले दिल्ली के अंदर. One person lost 75 lakhs through missed calls. सुना था आप? So I got a call from a news channel, NDTV से कि साहब मिस कॉल आई और 75 लाख चले गए. मैंने कहा अच्छा, तो बोले ऐसा हो सकता है. मैंने कहा क्वाइट इम्पॉसिबल, बट
तो बोले आप फिर डिफेंड कीजिए ना, ये चैनल पे बताइए क्या क्यों नहीं हो सकता. सो मैं ऑल थ्रू द डे आई वाज डिफेंडिंग दैट इज नॉट पॉसिबल, देयर माइट बी सम अदर रीजन. और वो बंदा अपना फोन दिखा रहा है, देखो सर मुझे ना कोई ओटीपी आया ना कोई अलर्ट आया, एंड आई लॉस्ट 75 lakhs, आई जस्ट रिसीव फ्यू मिस्ड कॉल्स, दैट्स इट. उसके बाद वो केस दिल्ली पुलिस के पास आया. वी स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, आई वाज आल्सो इन्वॉल्व. 2019 में एक घटना हुई थी, आप सबको याद होगा, पेगासस. याद है? पेगासस एक मेलवेयर था जो मिस कॉल पे इंस्टॉल होता था. यू विल जस्ट रिसीव अ मिस कॉल ऑन अ व्हाट्सएप. अब मिस कॉल को कैसे रोक लोगे आप? वो मिस कॉल आएगी और आपका फोन कंप्रोमाइज, कंप्लीट फोन हैक. सामने वाला आपके व्हाट्सएप मैसेज भी देख सकता है, कॉल भी सुन सकता है, दे कैन इवन कंट्रोल योर फोन टू अ ग्रेट एक्सटेंट. सो इट वाज इन अवर माइंड कि ऐसा तो नहीं पेगासस ट्राई कर रहे हैं, मतलब क्रिमिनल के पास पेगासस पहुंच गया. इट इज रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मेलवेयर. सो वी चेक्ड दिस फोन एंड स्कैन एंड फाउंड देयर वाज नो पेगासस ट्रेसेस. देखिए पेगासस नहीं था. लगा फिर कैसे गए? So the other doubt was there could be some application which was reading his SMS and sending it out and deleting it. और इस वजह से पैसे गए, OTP बाहर चले गए. ठीक है साहब, we checked all his applications. And in your phone you also can check what all applications are taking your SMS access. In your settings, permission manager, privacy, वहाँ जाएंगे, so you will see camera, microphone, contact list, SMS, etc. options. Click on SMS and you will see the list of the applications. Those have the access of your SMS. So we checked through this process and we found there was no application, no suspicious application which was taking the SMS access. तो फिर क्या मिस कॉल से ही गए? तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, तो डीसीपी साहब हैं सचिन शर्मा जी, ही सजेस्टेड, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई और फिर अनइंस्टॉल हो गई, बिकॉज हम तो 5 दिन के बाद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इस बीच में क्या हुआ हमें क्या पता. मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है. एंड आई शोड यू फ्यू सेकंड्स बिफोर दैट even Google and Facebook knows that how many applications you have installed in your phone in last 15-16 years. When did you install it? When did you uninstall it? Google तो और precisely बता देता है. आप Google डैशबोर्ड खोलिए, अभी दिखा देगा. So we checked in his phone कि इनके फ़ोन में पिछले एक हफ्ते में कितनी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई या अनइंस्टॉल. And when we checked, we found that yes, there was an application installed on Thursday evening and uninstalled on Sunday night. This was a video editing app which had the SMS access, which means इसने SMS OTP पढ़े, बाहर भेजे, डिलीट किए, और यही गड़बड़ कर रही थी. पर ये इंस्टॉल किसने की है? आपने मजा खराब कर दिया. पूरा मजे लेने की स्टोरी जानी चाहिए ना. या पिन ड्रॉप साइलेंस क्यों था? बिकॉज ऑफ दिस रीजन. सस्पेंस खराब नहीं करना चाहिए. क्योंकि इस प्रोसेस में आप 6-7 चीजें सीखेंगे. द पर्पज इज नॉट हाउ टू सॉल्व इट, द पर्पज इज व्हाट वी आर लर्निंग आउट ऑफ इट. तो आप हर सेकंड की लोकेशन देख सकते हैं किसी के भी. सो वी नेक्स्ट थिंग वाज हाउ टू चेक हु हैज डन इट, कि इनकी लोकेशन कहाँ थी जब एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई, वेयर वाज ही, और जब अनइंस्टॉल हुई तब ये कहाँ थे. तो इवन गूगल ऑल्सो शोज यू कंप्लीट लोकेशन हर सेकेंड की, आप देख सकते हो अपने. तो हमने देखा कि जब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई तब और जब अनइंस्टॉल हुई तब, बोथ द टाइम्स ही वाज एट हिज होम. तो घर में किसी ने क्या होगा? पहला डाउट उनकी वाइफ पे गया, पर वाइफ से कैसे पूछें? सो देयर वाज अ ट्रिक थ्रू व्हिच यू कैन check this whether someone has installed an application in your phone without asking. You don't need to ask, and sometimes even you don't need to touch his phone. उसके बिना भी कर सकते हो. आपके फोन का जो एक्टिविटी लॉग है पिछले 15-20 साल का, जब से आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, इट इज स्टोर्ड ऑन क्लाउड एंड यू कैन एक्सेस इट. यू योरसेल्फ कैन एक्सेस इट. यू हैव टू टाइप इन योर ब्राउजर. अभी मोबाइल फोन खोलिए, जितने एंड्रॉयड है वो तो कर ही सकते हैं, myactivity.google.com. and it will give you the activity list of all your many years. मैंने सिर्फ ये देखा कि जब हस्बैंड के फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही थी तब वाइफ के फोन में क्या हो रहा था. Was she doing something? Was she busy in something else? Because she can't handle 2 phones simultaneously. So when we checked, we found that the wife was watching something on OTT when the application was installed on his phone. And when the application was uninstalled, she was not at her home. वो तो घर से बाहर थी. हम मान के चल रहे हैं कि इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन एक ही व्यक्ति ने किया. करेक्ट. सेकंड डाउट गया उनके बच्चे पे. अब बच्चे से भी नहीं पूछ सकते,
जुवेनाइल है, 12-13 साल का. सो वी आस्क्ड हिज ऑल डिवाइसेस. आईपैड मिला हमें एक, जिसमें वो गेम वगैरह खेलता था. एंड इन हिज आईपैड वी गॉट एन एप्लीकेशन विच इज कॉल्ड डिस्कॉर्ड. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट डिस्कॉर्ड? अब जिन लोगों को डिस्कॉर्ड के बारे में पता है, जरा उनकी तरफ देखिए और उनकी एज देखिए, और जिनको नहीं पता वो जान ले. डिस्कॉर्ड is a chat messaging app, just like WhatsApp, Telegram, Signal. But Discord has a unique feature. Discord is unique. Discord is anonymous chat messaging app. Discord पे जब आप account create करते हैं, you don't need to give your mobile number or email ID या Proton mail या कोई private रख लीजिए. So then your identity, we will check it later. Okay, you don't need to challenge me because मैं एक्सपर्ट हूँ. मैं डेली क्रिमिनल्स पकड़ रहा हूँ. यू हैव टू गिव राइट, पर आपने पूरी तरह सुना नहीं. सो बी अलर्ट. मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूँ. यू कैन गिव एंड यू कैन अवॉइड. जो ईमेल आईडी है वो आप प्रोटॉन मेल या सैक मेल का देते हैं. जब आप प्रोटॉन मेल या सैक मेल का देते हैं तो आप कंप्लीटली हिडन होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन मेल भी प्राइवेट ईमेल है. उसके बारे में लॉ एनफोर्समेंट कुछ पता नहीं कर सकता. इज इट ओके नाउ? गॉट इट? सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब. मैं बोलूंगा तेज, पर मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा. डोंट वरी, बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग दैट आई हैव डन. डिस्कॉर्ड सबसे ज्यादा क्रिमिनल यूज करते हैं आजकल, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो बच्चे यूज करते हैं, टीनेज बच्चे. पर बच्चे क्यों यूज करते हैं? बच्चे ऐसा क्या है जो डिस्कॉर्ड पर कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते, टेलीग्राम पे नहीं कर सकते, सिग्नल पे नहीं कर सकते? ऐसी और भी बहुत सारी ऐप्स हैं. ज़ेंगी करके एक चाइनीज, जो बैन कराई हमने सर्च से. इट वॉज ऑल्सो एनोनिमस. एक लद्दाख की एसपी है नित्या, उनका एक केस था ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ्रॉड का, एंड आई वाज इन्वेस्टिगेटिंग दैट. और उसमें उनके पास सारे एविडेंस थे, सब कुछ था, पर वो ये क्लोज नहीं कर पा रही थी कि क्रिमिनल आपस में बात कैसे कर रहे थे. ना व्हाट्सएप पे थे वो, ना वो कोई दूसरा मैसेजिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं, ना इधर नॉर्मल कॉल तो करते ही नहीं आजकल, हम ही नहीं करते. क्रिमिनल कहाँ से करेंगे? तो हमने सारे क्रिमिनल जो सस्पेक्ट थे उनके आईपीडीआर निकलवाए. आईपीडीआर यू नो, इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल्स रिकॉर्ड. इट गिव्स, यू कैन गेट इट थ्रू ऑपरेटर्स. और उसमें आप देख सकते हो कि आप इंटरनेट पे क्या क्या कर रहे थे. सर्विस मिल जाती है आपको, कौन कौन सी सर्विसेज आपने यूज की. तो हमने सिर्फ आईपीडीआर में देखा कि इन सारे सस्पेक्ट के फोन में कौन कौन सी कॉमन एप्लीकेशन, और जब कॉमन, क्योंकि कोई तो कॉमन एप्लीकेशन होगी जिससे बात कर रहे थे, तो सारी कॉमन एप्लीकेशन देखी तो एक निकल के आई जिसका नाम थी ज़ेंगी ऐप, चाइनीज ऐप, विच इज ऑल्सो एनोनिमस चैट ऐप. एंड फिर इवेंचुअली सर्च से वो बैन करा दी गई, अब वो प्ले स्टोर पर नहीं होगी. बट ऐसी आती रहती है, ये तो रेस चलती रहेगी. डिस्कॉर्ड कैन बी मेड एनोनिमस. इवन टेलीग्राम को भी आप कर सकते हैं एनोनिमाइज्ड. उसमें भी अभी फीचर आ गया है. राइट? नहीं पता आपको? उनको पता है, वो पीछे उनसे चेक कर लेना. तो ये जो एनोनिमाइजेशन का रेस है कि आप छुपे रहें, ये क्रिमिनल के बड़े फेवर का है. सो उस पर डिस्कॉर्ड पे आपको एक हैशटैग क्रिएट करके मिलता है, हैशटैग KIRK5372. सपोज ये आपका हैशटैग है, एंड विद दैट हैशटैग यू कैन कम्युनिकेट विद एंटायर वर्ल्ड विदाउट रिवीलिंग योर आइडेंटिटी, एंड नाइदर यू वुड नो द आइडेंटिटीज ऑफ अदर पर्सन. सो दिस किड वाज इन चैट विद सम गर्ल. किसी लड़की से वो बातचीत करता था, उसको लगता था कि वो लड़की है. मुझे पता है कि वो क्रिमिनल ही था. उसने उसको एक लिंक भेजा और कहा कि ये लिंक अपने फादर के फोन में इंस्टॉल कर दो, तुम्हें 200 रोबक्स पॉइंट्स मिलेंगे. सो रोब्लॉक्स इज द गेम एंड रोबक्स इज द करेंसी. 200 बच्चों ने कई बार मांगे होंगे पेरेंट्स से कि मुझे रोबक्स पॉइंट्स खरीद के दे दीजिए. जैसे पबजी खेला है किसी ने, पबजी के अंदर जो करेंसी है वो बैटल पॉइंट्स. सो इफ यू वांट टू अपग्रेड योर इक्विपमेंट्स, एम्युनिशंस, आर्म्स, टू परचेज समथिंग, तो यू नीड बैटल पॉइंट्स. बैटल पॉइंट के चक्कर में सारे क्राइम होते हैं, पबजी के चक्कर में नहीं. किड्स आर क्रेजी अबाउट बैटल पॉइंट, क्योंकि पबजी गेम ही ऐसा है जो एग्रेशन दे देता है. यू आर फाइटिंग ऑल द टाइम, बैटल ग्राउंड है वो. सो आप धीरे धीरे उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि अब आपको आगे जाने के लिए आप कुछ भी करोगे, बिकॉज आप तो वॉरियर हो, और वो आप रियल वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट कर देते हो. उसके लिए चाहिए आपको बैटल पॉइंट्स. सो दिस इज द रीजन, कोर रीजन दैट पबजी के चक्कर में जो क्राइम होते हैं. सेम विद रोब्लॉक्स. सो रोब्लॉक्स के अंदर जो करेंसी है विच इज कॉल्ड रोबक्स, और रोबक्स करेंसी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि रोबक्स इज बाई डायरेक्शनल करेंसी. यू कैन परचेज रोबक्स थ्रू एनी करेंसी एंड यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट दैट इनटू दैट करेंसी क्विकली. इट्स लाइक एनी अदर क्रिप्टो करेंसी. तो 200 रोबक्स पॉइंट्स के चक्कर में उस बच्चे ने वो एप्लीकेशन अपने फादर के फोन में इंस्टॉल भी कर दी और फिर अनइंस्टॉल भी कर दी, क्योंकि लड़की ने कहा ये दोबारा इंस्टॉल करेंगे, दोबारा में नहीं है.
रोबक्स से इंडिया से एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑलमोस्ट 3 to 4 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है हर साल। और अभी तक हम सोचते थे क्रिप्टो वर्ल्ड इज चैलेंजिंग अस, बट नाउ इट इज गेमिंग करेंसीज एज वेल। सो इन दिस सिंगल केस स्टडी वी लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम डेटा पॉइंट्स, फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन पॉइंट्स एंड वर्ल्ड ऑफ जार्गन्स। मुझे बता देना जब मुझे खत्म कर। ओके, थैंक यू। टाइम खत्म हो गया सर, तो आई नॉट स्पीक मच। आई विल गिव यू सम कंक्लूजन्स। आई विल जस्ट टेक 1 minute एंड विल गिव यू सम लर्निंग्स, बिकॉज आई विल कीप ऑन। अभी तो मैंने पीपीटी स्टार्ट भी नहीं किया। सी, जब मैं बोलता हूं तो लोग कहते हैं सर बचाना कैसे है, डरा तो दिया आपने। तो बचने का एक ही तरीका है, दिस कॉल्ड डिटैचमेंट। सी, nowadays we are influenced by the data points all the time. हम जो डेटा देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, हम 24 घंटे उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। भगवत गीता में जब चैप्टर 13 में भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि यू आर टेलिंग मी ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, टेल मी हु एम आई, पहले बताइए मैं कौन। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम अर्जुन हो? यू आर क्रिएटेड एज अर्जुन। जो तुम्हारे सराउंडिंग्स में डेटा पॉइंट्स है उन्होंने तुम्हें क्रिएट किया। तुम्हारी जगह कोई और होता भी अर्जुन ही बनता। वैसे हम सब हैं। We all are the product of the data points of our surroundings. Because nowadays criminals are aware about these data points very well. They can manipulate this through various other channels. क्योंकि हम तो इतने ज़्यादा communication channels, तो हमें influence कर लेता है और हमारे संग crime होता है, trust build कर लेता है. So the very first thing that we need to learn is zero trust model when we are communicating on virtual world. Cyber space में आप जब तक 2-3 चैनल से वेरीफाई न कर लें, never trust on a request. Even on Google search, even on ChatGPT, you have to learn verification practice. You have to practice it. कि ऐसे नहीं कि आप आया बस यही सच है। गूगल सर्च करके लोग क्लेम करने लगते हैं, पर वो तो मैनिपुलेटेड हो सकता है। मैं कोई एक पर्टिकुलर ओपिनियन, बायस्ड ओपिनियन पुश कर दूंगा, वो आने लगेगी उसमें सबसे ऊपर। सो दिस इज फर्स्ट लर्निंग, डिटैचमेंट, नेवर गेट इन्फ्लुएंस्ड। एंड जितने भी क्राइम है वो 5 ही कमजोरी से होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। You have to learn controlling this. मैं आपको कोई एंटीवायरस, कोई एक ऐप सजेस्ट कर सकता हूँ. There is an app called Mobi Armor. You can use it. Mobi Armor can help you to protect your OTP theft. क्योंकि ऐसे 8-10 तरीके हैं जिससे आपका OTP चुराया जा सकता है. Anybody can steal OTP without touching your phone. And we think that OTP makes us secure. OTP तो कहीं जा ही नहीं सकता, जब तक मैं बताऊंगा नहीं कैसे जाएगा. पर मैं ये उड़ा लूंगा. समय कम है, वरना मैं 2-3 तरीके यहाँ दिखाता. और किसी का भी व्हाट्सएप, किसी का भी जीमेल आप यूँ हैक कर सकते हो. और जीमेल हैक हुआ तो उसकी पूरी कुंडली चली जाती है, जिंदगी भर की सब डेटा गया, उसकी लाइफ क्या टेक हो जाएगी उसके बाद. सो डोंट बिलीव दैट OTP नहीं जा सकता. 10 तरीके हैं ऐसे कॉमन, बड़े सिंपल नॉन टेक्निकल. तो ये जो एप्लीकेशन है मोबी आर्मर, ये आपका OTP नहीं चोरी होने देगी. QR कोड बेस्ड स्कैन नहीं होंगे, लिंक बेस्ड स्कैन नहीं होंगे, कोई मैलिशियस ऐप आपके फोन में इंस्टॉल नहीं होगी. और यदि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आ रही है तो उसके बारे में अलर्ट कर देगा. सो देयर आर मल्टीपल सच फीचर्स. मोबी आर्मर आप यूज कर सकते हो. विद दिस आई विल टेक रेस्ट टू माय वॉइस. थैंक यू सो मच. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. In the BII, we were going to be able to then I did the transaction to buy in this like long name. Then they did not ask me the my area. Say simply, what you did it out of that and main that would end. Such very practically we CDD it up. After that CDD, the state is still मतलब there. Another to get it white registered white and basically master to be. So please stand so. आपका कहीं और कभी आपने सेव किया था क्या? देखिए 2-3 रीज़न हो सकते हैं, वो ऑफलाइन भी आप चेक कर लेंगे हम. एक तो यदि आपके ब्राउज़र में कभी सेव्ड रह गया होगा तो वो ले लेगा, वहाँ से नहीं मांगेगा. दूसरा, आपने किसी सिमिलर मतलब ऐसी ऐप को दिया है तो वहाँ से भी पिक कर लेगा. जैसे गूगल के पास है और गूगल से आपने लॉगिन किया तो ऑटोमेटिक पिक हो जाता है. और इंटरनेशनल यदि ट्रांजेक्शन्स आप करेंगे तो OTP तो कभी नहीं मांगेगा वो, पर CVV तो मांगेगा. एक्सपायरी और CVV तो मांगते हैं. CVV मांगना जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोड की कोई भी अगर ट्रांजैक्शन करनी है तो CVV हैज टू बी प्रोवाइडेड. एक्चुअली अभी लास्ट ईयर नवंबर से टोकनाइजेशन करके फीचर ऐड हुआ है. टोकनाइजेशन मैंडेटरी कर दिया सारे ई-कॉमर्स पोर्टल के लिए. टोकनाइजेशन से क्या है कि आप जब भी अपना कार्ड डिटेल्स किसी कंपनी को भरेंगे, देंगे, तो वो कार्ड डिटेल कंपनी के पास जाएगा नहीं, उसका एक टोकन बनेगा, वो टोकन जाएगा और वो टोकन ही यूज करेगा पेमेंट लेने के लिए.
ना दैट टोकन कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनी अदर एप्लीकेशन प्रोवाइडर और एनी अदर सर्विस प्रोवाइडर, कि उससे आपका वोडाफोन का बिल भी चला गया और उसके बाद नेटफ्लिक्स का भी चला, ऐसा नहीं हो सकता। कार्ड डिटेल कॉपी हो गई तो जा सकता है, पर टोकन एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए एक ही होता है, पहली चीज। दूसरा, टोकन की लिमिट भी आप कर सकते हो कि टोकन 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाए। कार्ड की तो नहीं कर पाते आप, तो वो अपने आप पैसा कटता रहता है। सो देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ टोकनाइजेशन। आगे से आप कभी भी कार्ड यूज करें, उसमें नीचे एक चेकबॉक्स आएगा टोकनाइजेशन का, वो क्लिक कर लें, उसके बाद आपका ऐसा कभी चैलेंज नहीं है।